students, welcome back to Pradis Institute of Education. So, you are learning with your Deepika ma'am and we are doing this chapter linear equation in one variable. So, क्या क्या पढ़ रहे थे हम? Linear equations के बारे में पढ़ रहे थे and previously जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे कुछ ऐसे equations solve जिन्हें पहले हम reduce कर रहे थे simpler form में. So, we have started exercise 2.5 and we have solved 4 questions there. So, now we will start with the question number 5th in our book. So, what is the question number 5th in our book? Solve the following linear equation. Guys, continuing here. Question number 5 is 3t minus 2 by 4 minus 2t plus 3 by 3 equals 2 by 3 minus 3. कैसे solve करेंगे? क्या करेंगे आप लोग बताइए. Here we have denominators and in case of denominators we'll go with the LCM. Correct. So LCM लेते हैं. LCM लेने के बाद हम both side उस LCM से multiply भी कर सकते हैं या फिर हम हमारे fraction को rational number को equivalent rational number find out कर सकते हैं with the denominator as the LCM. So now डायरेक्टली हमें पता है 4 and 3 का LCM जो आएगा 12 आएगा. नहीं पता तो कैसे पता करेंगे? टेक द LCM. वी नो हाउ टू टेक द LCM. ओके, सो नाउ आई नो द LCM विल बी 4 and 3. LCM of 4 and 3 is 12. So I am writing the equation we have here 3t minus 2 by 4 minus 2t plus 3 whole upon 3 equals 2 by 3 minus t. So, I am multiplying both sides with 12 and I am multiplying the terms directly. Okay. So, I am skipping one step here. I am multiplying 12 to each and every term directly. So, 12 into 3t minus 2. So, we may use the bracket here. So, confusion नहीं होगा. Minus 12 into 2t plus 3 whole upon 3 equals 12 into 2 by 3 minus 12 into t. अब थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, साइड में कहीं लिख देंगे क्या किया है हमने. सो हमने किया है, यहाँ लिख देते हैं multiplying both side by 12 and or we may write LCM of 4 and 3. Okay. So now let's come back to the equation. So here we have common factor of 4 and 12. 4 ones are 4, 4 3s are 12, 3 4s are 12. Again we have 3 4s are 12. Means सारे डिनोमिनेटर्स हमने हटा दिए हैं. यही एक अच्छी बात होती है LCM लेके मल्टीप्लाई करना बोथ साइड. सो नाउ विल मल्टीप्लाई 3 टू ऑल द टर्म्स इन दिस ब्रैकेट. सो 3 into 3 9 t as it is, 3 into 2 6 with negative sign minus 4 into 2 8 t minus 4 is multiplied to 3. मेक श्योर ये माइनस साइन हम ना भूलें, इसका ख्याल ध्यान रखें. जब माइनस हो ब्रैकेट के बाहर तो वहीं थोड़ा अलर्ट हो जाना है क्योंकि यही सारे चांसेस होते हैं मिस्टेक के. तो यहाँ ब्रैकेट रिमूव करने से पहले माइनस साइन है, मीन्स ये माइनस भी सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा. सो माइनस 4 इंटू 2 माइनस 3 माइनस 8 सॉरी माइनस 4 इंटू 3 4 3s are 12 and minus plus minus. In equals we have 4 2s are 8
एंड -12t। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर लेते हैं। हियर वी हैव सम लाइक टर्म्स इन LHS, सो 9t minus 8t विल बी t ओनली, -6 -12 एडिशन होगा, सो वी गॉट 18 -18 इन इक्वल्स वी हैव 8 -12t। 12t यहाँ ले आते हैं LHS में, t is at its place, now 12t will come here but with positive sign because it is changing the place. 8 as it is, 18 will go here with positive sign, and here we have 18, not 10. Now 12t plus 1, 13t, and 18 plus 8, 26. It is 13, not 18. 13t equals 26. That is x रिप्लेस t को अपनी प्लेस पे रखकर 13 को शिफ्ट करेंगे, सो वी हैव वैल्यू ऑफ t एज 13 2s are 26, सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ t एज 2। लीजिए t की वैल्यू भी आ गई 2। ज़्यादा कुछ नहीं किया, LCM लिया, LCM लेके उस LCM से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लिया, हर एक टर्म में मल्टीप्लाई किया, रिड्यूस हो गई इक्वेशन लीनियर फॉर्म में। लीनियर फॉर्म में इक्वेशन रिड्यूस हो गई, उसके बाद तो हमें बहुत अच्छे से पता था क्या किया है हमने, इक्वेशन सॉल्व की है बाय अप्लाइंग द ट्रांसपोजिशन मेथड। क्लियर? सो अब इस तरीके के कैसे भी क्वेश्चंस आई होप हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट? देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, again we have a condition given here with variable m minus 1 by 2 equals 1 minus m minus 2 whole upon 3। बिना कुछ ज़्यादा डिस्कशन किए हमें पता है कि यहाँ पर पहले हम क्या करने वाले हैं, LCM लेने वाले हैं। LCM किसका? डिनोमिनेटर्स का, बिकॉज डिनोमिनेटर्स हैं LCM से ही जाते हैं। So 2 and 3, LCM will be LCM of 2 and 3 is 6. So multiplying both side by 6 we get, बोथ साइड 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक एक टर्म में भी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो 6 इंटू m माइनस 1 बाई 2 इक्वल्स 6 इंटू 1 माइनस 6 इंटू m माइनस 2 होल अपॉन 3। क्या होने वाला है बहुत अच्छे से पता है, कॉमन फैक्टर्स कैंसल आउट कर लेंगे। नाउ लेट्स रिमूव द ब्रैकेट्स, सो 6 इंटू m, 6m माइनस 3 इंटू m, 3m, 3 इंटू 1, 3 एंड माइनस माइनस प्लस। एज आई टोल्ड यू, ब्रैकेट के पहले अगर नेगेटिव साइन है तो वहाँ पर अच्छा खासा ध्यान रखना है। इक्वल्स 6 इंटू 1 6, 2 इंटू m 2m, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 2 इंटू 2 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सी थोड़ा सा ध्यान देते हैं, वहाँ पर सारे चांसेस जो है मिस्टेक करने के वो अपने आप चले जाते हैं। सिर्फ फोकस यही होना चाहिए जब हम ब्रैकेट रिमूव कर रहे हो, खास तौर पे जब नेगेटिव साइन हो। लाइक टर्म्स 6m माइनस 3m, 3m plus 3 as it is, in equals we have minus 2m as it is, 6 plus 4 10। Now सारे वेरिएबल्स LHS में ले आते हैं, so 3m minus 2 will come here as 2m, positive 2m, 10 is here and minus 3 हो जाएगा, so we have 3 plus 2
5m equals 10 minus 3 7, that is m will be equals to 7 minus 5 and we don't have any common factor, they are co-prime numbers, that means आंसर हमारा यही होने वाला है 7/5। क्लियर? चलिए, कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की रिक्वायर्ड यहाँ पर है नहीं। एलसीएम लिया है, मल्टीप्लाई किया है बोथ साइड उस एलसीएम से, 1 बाय 1 सॉल्व करते गए हैं। यहाँ पर हर एक टर्म में 6 का मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट ओपन किया तो 6 जो है वो इंडिविजुअल टर्म से मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ पर भी यही हुआ है, 2m + 4 हो गया। नेक्स्ट हमने सारे लाइक टर्म सॉल्व कर लिए, 6m - 3m विल बी 3m, 3 एज इट इज़, -2m एज इट इज़, 6 + 4 10, 3m, 2m यहाँ से यहाँ आया, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, 10 अपनी प्लेस पर है, 3 यहाँ जाएगा नेगेटिव हो गया। जस्ट वी हैव सॉल्व दी टर्म्स एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ m एज 7/5। Easy, right? Let's quickly go to the next question. So question number 7 क्या है? We have a heading as simplify and solve the following linear equation. Question में भी लिखा है simplify करना है, then we have to solve the linear equation. Question नहीं भी लिखा होता तो हम सेम चीज़ ही कर रहे हैं अभी तक। क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 multiplied to t minus 3 equals 5 multiplied to 2t plus 1. अब आई थिंक ये क्वेश्चन बिना किसी की हेल्प के हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जस्ट वी नीड टू रिमूव द ब्रैकेट्स हियर एंड वी नो very well how to remove the brackets, right? Let's do it. So next solution we have, I am just removing the grouping elements here. So 3 is multiplied to t, so we will get 3t, 3 is multiplied to 3, so we will get 9 with negative sign, and equals we have 5 into 2 10 t, 5 into 1 plus 5. So now we have the equation as 3t minus 9 equals 10t plus 5. अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, कोई ज़रूरत नहीं है वैसे बताने की, चलो बट लेकिन सॉल्व कर लेते हैं। नाउ दिस टाइम आई एम टेकिंग दिस 3 to RHS बिकॉज इन LHS 10t इज़ द ग्रेटर वैल्यू एज कम्पेयर टू 3t, तो ऐसा हम कर सकते हैं, राइट। 3t को यहाँ ले जाते हैं, so I am writing 10t first and 3t will come here with negative sign, and here we have -9 and my 5 will come here with negative sign, so -5. Next -5 -9 negative addition होगा, 9 plus 5 14 but with negative sign, 10 minus 3 7t. Now we may write this equation as 7t equals -14. I am changing both the positions, so यहाँ पर साइन चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, as we all know. Now t will go here in denominator, so we got -17 by -14 by 7 and t will be equals to -2. So लीजिए आ गया हमारा आंसर as t equals -2. खुद से भी सॉल्व कर सकते थे, आई होप कि यहाँ देखे बिना हमने ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व किया है। सो इजी है, क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है एज -2। ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में हमें इक्वेशन नहीं दी गई थी, जस्ट हमें पता है इक्वेशन है। अगर हम BODMAS रूल फॉलो कर रहे हैं, सो फर्स्ट वील रिमूव द ब्रैकेट टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन, वी डिड दैट एंड वी गॉट अ लीनियर इक्वेशन इन सिंपलर फॉर्म एंड देन वी हैव सॉल्व्ड इट, करेक्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन जो है उसी फॉर्म में है, क्या है 15 इंटू y माइनस 4 माइनस 2 इंटू y माइनस 9 प्लस 5 इंटू y प्लस 6 इक्वल्स 0. I think there will be a 0 here in equals to, yes it is equals to 0. Okay, डायरेक्टली सॉल्यूशन पे आते हैं।
just what we'll do, we'll replace or we'll remove this grouping elements from here. So let's remove the grouping element one by one. I am removing this grouping element from here, so that means I need to multiply 5 to each term in this bracket. So 15 into y will be equals to 15y minus 15 into 4 will be equals to 60. Then I'll multiply this 2 to each term here. So 2 into y, 2y, negative, positive, negative, 2 into 9, 18, negative, negative, positive, plus 5 into y, 5y, 5 into 6, 30, positive, 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 in equals we have 0. सारे के सारे टर्म एक तरफ ही है, मीन्स हम इन्हें ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं जितने भी लाइक टर्म्स हैं, बट जल्दबाजी नहीं करनी है. क्या करेंगे, वन बाय वन सॉल्व करते हैं, मतलब जो भी पॉजिटिव वाले हैं पहले उन्हें सॉल्व कर लेते हैं और नेगेटिव वालों को अलग से सॉल्व कर लेते हैं. सो हियर वी हैव 15y प्लस 5y मीन्स 15 प्लस 5 20y. और वी मे डू वन थिंग, लेट्स जस्ट राइट द लाइक टर्म्स टुगेदर फर्स्ट to avoid the confusion. So 5y, then we have this minus 2y, then write all the constant term, minus 60 plus 18 plus 30, and in equals we have 0. Now we'll solve it now. 15 plus 5, 20y minus 2y. I am adding these two positive terms first. So 18 plus 30 we have plus 48 equals 0. What I did here? I have just solved these two values and these two values, means I have just solved the positive terms only. Now I solve these two terms. So 20 minus 2 will be 18y minus 60 plus 48, negative, positive, next subtraction होगा. So 60 minus 48, 10 minus 8, 2, 5 minus 4, 1, and with the negative sign because 60 is greater value. In equals we have a 0. अब बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन हम क्लास 7th में भी सॉल्व करते आए हैं. क्या करेंगे, एक एक करके टर्म्स को हम शिफ्ट करते जाएंगे. So as we all know, first we'll shift the term with the positive or negative sign. Means जो addition subtraction वाला concept है पहले वो shift होता है rather than the multiplication or division case. So first we'll shift this 12 to, so it is negative here, it will go here positive and we'll get 12 plus 0. So we may write 12 directly here. Now y will be equals to 12 upon 18. So 12 upon 18 we have a common factor here 2. So 2 4s are 12 and 2 9s are, no, why I am writing 4? Who said 2 4s are 12? We have a common factor as 3 also. So 3 4s, 3 4s are 12, 3 6 are 18. Again we can simplify this. So we will get 2 2s are 4 and 2 3s are 6. So we got the value of y as 2 by 3 is the answer. So just we have simplified the condition by removing the grouping elements, by removing the bracket, and then we did the calculative part and we got the solution as 2 by 3. Easy, correct? Let's go to the next question. So answer for this question is 2 by 3. You may directly divide these two terms by the common factor as 6 because 6 is the common factor here. So वो भी कर सकते थे हम, तो भी हमें 2 by 3 ही मिलता. Okay, let's see the next question.
what we have next? Question number 9. Again we have a same question here, और क्वेश्चन नंबर 9 में भी कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर. दिस इज द क्वेश्चन. 3 into 5z minus 7 minus 2 into 9z minus 11 equals 4 into 8z minus 13 minus 17. So this is the question we have here. Now let's remove the grouping element. अब हमको बहुत अच्छे से I think ये मेमोराइज हो चुका है कि ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होने वाली है. So let's do it. Just remove the bracket grouping elements. So after removing the grouping elements, I am multiplying the terms simultaneously here. So 3 into 5, we got 15z minus 3 7s are 21 minus 9 2s are 18z minus minus plus 2 into 11 22. In equals we have 4 8s are 32z minus 4 into 13. So 4 3s are 12, 1 carry over, 4 1s are 4 and 1 5. 52 minus 17 as it is. Now just solve the like term. So here we have 15z and 18z. So 18 minus 15 is 3 and 18 is bigger value. So we will take the negative sign from 18. Now minus 21 plus 22, 22 minus 21 is 1, 22 is greater, so we will take the positive sign. Now in equals we have 32z minus minus plus, so we will add these two values, 7 plus 2, 9, 5 plus 1, 6 with the negative sign. Here we got a linear equation. Now as per the rule, we will shift all the variable part to one side and all the constant part to one side. So I am shifting this 3z to RHS. So 32 as it is, minus 3z will come here with positive sign as 3z, 69 will come here, so 1 is at its place, 69 will come here with positive sign, so it will go as 1 plus 69, 1 plus 69 is 70, 32 plus 3 is 35z and 70 upon 35 will be equals to z, or we may write z equals z, it is z not 2, z equals 2 because 35 into 2 is 70. See how easily we got the answer here, and the answer is 2. Equations same है, pattern सबका same है, just follow the common mathematics, we are just following the common mathematic rules to solve the equation. इसलिए ज़्यादा कुछ माइंड में ऐसे अननेसेसरी चीज़ें नहीं लेकर आनी है कि अरे ये इक्वेशन तो रिड्यूसिबल फॉर्म में है, कैसे सॉल्व होगी कैसे नहीं होगी, तो ये सब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है. जस्ट इक्वेशन उठाइए, शुरू हो जाइए. बस ध्यान रखना है कि मैथ्स के जो रूल्स हैं उन्हें अवॉइड नहीं करना है. अदर देन दैट जो भी आपको आ रहा है, पहले मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, एलसीएम लेना है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी सेम रिपीट हो रही है. जस्ट चेंज क्या हो रही हैं, टर्म्स चेंज हो रही हैं. तो मैथ्स में टर्म्स तो चेंज होंगी. चलिए बहुत होगी बातें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है वो भी देखते हैं. हियर वी हैव सम डेसिमल्स. 0.25 मल्टीप्लाइड टू 4f minus 3, I think we missed a negative, minus 3 equals 0.05 into 10f minus 9. So this is the question we have. अब इस क्वेश्चन में वैसे तो कुछ भी नया नहीं है, जस्ट एक चीज़ बॉदर हमें कर सकती है, वो क्या है कि यहाँ पर कुछ डेसिमल्स दिख रहे हैं और डेसिमल्स के साथ सॉल्व करना शायद किसी किसी को थोड़ा इतना अच्छा नहीं लगता. तो डेसिमल्स पसंद नहीं आ रहे हैं, तो मैथ्स में हम डेसिमल रिमूव कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, बोथ साइड कितने डेसिमल्स हैं,
two decimal places are there, so we can do one thing, we can multiply both side by 100. कर सकते हैं ऐसा? किसी ने ऐसा कुछ बोला कि हम ऐसा नहीं कर सकते? नहीं ना, कर सकते हैं. We are multiplying 100 to both side of the equation. और दोनों साइड अगर हम कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, प्लस माइनस सब चीज़ें कर सकते हैं. जस्ट कंडीशन क्या है, वी हैव टू मेंटेन दी बैलेंस. जो भी है एक साइड पे नहीं, दोनों साइड पे करेंगे तो बैलेंस जो है वो एज इट इज़ रहेगा. सो टू मेक इट सिंपलर, what I am doing, I am multiplying both side by 100. बोथ साइड बाय 100. अब बट एक चीज़ माइंड में रखेंगे हम कि मैम ने ऐसा किया है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा. नो, हम इसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं. आप चाहें तो डायरेक्टली सॉल्व करके देख लीजिए, आप चाहें तो इस वे में सॉल्व करके देख लीजिए. दोनों ही वे में जो हमारा आंसर आएगा वो सेम ही आएगा. ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि ये जो टाइप का क्वेश्चन है वो ऐसे ही शुरू होगा. नो, जस्ट हम इसे थोड़ा सा सिंपलर करने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग 100 to both the side, I am getting the value as this. 4f minus 3 equals 100 into 0.05 multiplied to 10f minus 9. Now 100 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डेसिमल रिमूव हो जाएगा. सो वी गेट 25 into 4f minus 3 equals 5 into this 10f. ओके, अब तो पता ही है क्या होने वाला है. यू नो वेरी वेल. जस्ट multiply the 25 to each term of this bracket and 5 to each term of this bracket. So 25 into 4, 100 f minus 25 into 3, 75. In equals we have 5 into 10, 50f minus 5 nines are 45. अब तो शायद हम नींद में भी इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं. क्या करना है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, पहले तो ये बताओ. कर सकते हैं ना. बहुत सारे, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि अब शायद हम नींद में भी इन्हें सॉल्व कर सकते हैं. तो 75 विल गो हियर एंड minus 45. Now next what? 100 minus 50, 50f equals 70 minus 45, 5 minus 5 0, 7 minus 4 3. So f will be equals to 30 by 50, that is we got the value of f as 3 by 5. Yes, we got the answer here as 3 by 5. See, 100 का मल्टीप्लाई करने का एक ही बेनिफिट मिला कि हमें डेसिमल से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, क्योंकि डेसिमल्स हमें शायद कभी कभी देखने को मिलते हैं और हम वहाँ पर जनरली बहुत सारी गलतियाँ कर जाते हैं मल्टीप्लाई करने पर. तो हमने इसे पहले ही रिमूव कर लिया. सो रिमूव करने पर हमें चीज़ें थोड़ी सी सिंप्लीफाई वे में मिल गई, सिंप्लीफाइड वे में मिली. नाउ उसके बाद तो जो भी हुआ वो सब हमें पता है. इक्वेशन बनी, सॉल्व हुआ and we got the value of f as 3 by 5. So what we got the value of f? So we got the value of f as 3 by 5. So this will be the answer of this question. But क्वेश्चन क्या था? डेसिमल फॉर्म में दिया गया था. वैसे तो ये आंसर भी सही है, बट डेसिमल में दिया है तो हम इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइड करेंगे 3 को 5 से. So if we'll divide this 3 by 5, so we'll get 0.6. So ये दोनों ही जो आंसर हैं वो करेक्ट हैं.
हम इसे रैशनल फॉर्म में या फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस तरीके से आएगा, बट इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इन डेसिमल फॉर्म सो दिस इज़ द आंसर। दोनों ही आंसर सही है, दोनों ही आंसर हम लिख सकते हैं। डेसिमल फॉर्म में अगर 0.6 लिखना है तो 0.6 विल बी द आंसर। क्लियर? सो हियर एंड्स दिस एक्सरसाइज। यहाँ ख़त्म होती है हमारी एक्सरसाइज 2.5। इन दिस एक्सरसाइज बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, बहुत इजी थे, करेक्ट? सो नाउ दैट्स इट फॉर टुडे। I'll see you, I'll meet you in the next video where we'll do the next part of this chapter। जो थोड़ा सा एक टॉपिक बचा है वो हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। उसके लिए क्या करना है? So you have to stay tuned with us. I'll see you in the next video. Till then, bye bye, take care, thank you.